اتنی شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ. Okay, let's start IAS 10 events after reporting period. ٹھیک ہے. اب رپورٹنگ پیریڈ کس کو کہتے ہیں؟ رپورٹنگ پیریڈ آپ کا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے لیے آپ السلام علیکم. ٹھیک ہے. رپورٹنگ پیریڈ وعلیکم السلام. اپنے نا مائکس میوٹ کر دیں کیونکہ میں نے ریکارڈنگ پہ لگا دی ہے. جب آپ لوگ بولو گے نا تو ریکارڈنگ میں آپ کی وہ جو فوٹو ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے گی انسٹیڈ آف کہ آپ کو میری فوٹو ہو. جب میں کوئی کوشچن پوچھوں گا تب آپ نے اس پر رسپانس دینا ہے, یا اگر آپ نے کوشچن پوچھنا ہے تو جسٹ ریز یور ہینڈس. میں آپ لوگوں کو کہوں کہ انمیوٹ یور سیلف اینڈ آسک کوسچن. کیا آپ لوگ مجھے نظر آ رہے ہو تو آئی کین آسک یو ٹو ریز یور, یا آپ کا ریز ہینڈ کرو تو مجھے نظر آ رہا ہے. IAS 10 ایونٹس آفٹر رپورٹنگ پیریڈ, یعنی یہ IAS 10 جو ہے یہ رپورٹنگ پیریڈ کے بعد کے ایونٹس کو کور کرتا ہے. اب رپورٹنگ پیریڈ کس کو کہتے ہیں؟ لیٹس سے ایک کمپنی ہے تو 1 جنوری سے 31 دسمبر اکاؤنٹس بنا. 31 دسمبر 2020 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کا جو رپورٹنگ ٹائم ہے دیٹ از 31 دسمبر 2020. 31 دسمبر 2020 کو اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا دینی ہے, تیار ہو جائے گی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, پھر وہ پریزنٹ ہو جائیں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ 31 دسمبر کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بن گئی. یہ تھوڑا ہی ہے کہ 1 جنوری کو مارکیٹ میں پبلش ہوتی ہے. پہلے ان کو آڈٹ ہوتا ہے, یعنی 31 دسمبر کو تمام ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہیں, آپ ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, تو آڈٹ ہوتا ہے. جب آڈٹ میں وہ پاس ہو جاتی ہیں پھر اس کی آڈٹ رپورٹ ساتھ لگتی ہے. پھر ڈائریکٹر جو ہیں وہ فیضان اپنی رپورٹ ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر سے رپورٹ ساتھ لگتی ہے. تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پوری کی پوری جب تیار ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز فائنلی پھر اپروو کر دیتے ہیں. اوکے جناب سائن کر دیا ہم نے, اور اس کو آپ پبلش کر دیں اسٹاک ایکسچینج میں, یا جتنے بھی آپ کے انویسٹرز ہیں, شیئر ہولڈرز ہیں, سب کو بھجوا دیں. ہو سکتا ہے اس بات پہ 3 ماہ لگ جائے. یہ جو 3 ماہ کا یا 2 ماہ کا یا 1.5 ماہ کا عرصہ ہے, ٹھیک ہے, اس 1.5 ماہ کے لیے آپ جو اس 1.5 منتھ میں, یعنی کہاں سے لے کر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ڈیٹ سے لے کر جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز اپروو کر دیتے ہیں فار دا پبلشنگ, یہ جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو کور کرتا ہے IAS 10 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 10. یہ اس پیریڈ کو کور کرتا ہے. اس پیریڈ کے دوران یہ اسٹینڈرڈ کہتا ہے کچھ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو کہ مٹیریل ان نیچر, ظاہر ہے ٹرانزیکشن مٹیریل ہوں, ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کی جائے آفٹر 31 دسمبر ٹو دا سائننگ ڈیٹ آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپروول فار اپروول. اس میں وہ کہتا ہے کہ 2 قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں. ایک ہے جن کو اس نے نام دے دیا, کہتا ہے کہ دیز آر ایڈجسٹنگ ایونٹ. سیکنڈ از نان ایڈجسٹنگ. جو ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے ایڈجسٹنگ ایونٹس ہوں گے. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر ریسٹیٹڈ, یعنی ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ان کی ایڈجسٹمنٹ انٹریز پاس کرنی ہے. وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کہ 31 دسمبر کو بن چکی ہیں, اور وہ ایونٹس جو 31 دسمبر کے بعد ہوئے ہیں, ان ایونٹس کی وجہ سے ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی فگرس کو ریسٹیٹ کریں گے. یعنی 31 دسمبر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی فگر چینج ہو جائے گی ڈیو ٹو دوز ایونٹس. تو کون سے ہیں ابھی ڈسکس کریں گے. جو نان ایڈجسٹنگ ہیں اس کے بارے میں اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ فگرس کو مت چھیڑو, disclosed in فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ فگرس کو مت چھیڑو, ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز کر دو. خالی ڈسکلوجر نوٹس. آپ کو پتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب بنتی ہیں تو اس کے کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہو گیا اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز, اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان اکویٹی,
ये चार आपकी स्टेटमेंट्स हो गई हैं। ये अभी कैश फ्लो चेंजेस इन लिक्विडिटी अभी हमने पढ़ ली है, वो भी पढ़ लेंगे पैदान। तो उसके बाद फिर जो है इसके साथ एक फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, ठीक है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। तो जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं एक्चुअली उनमें क्या होता है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स होती हैं उन फिगर्स को आपने एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड एनी फिगर। फॉर एग्जांपल आपकी नेट बुक वैल्यू किसी एसेट की लिखी है तो वो कैसे आई है, तो नोट्स में आप लिखते हो कि उसकी कॉस्ट इतनी थी, accumulated depreciation इतनी थी, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन ये चार्ज की, टोटल accumulated इतनी होगी, कॉस्ट में से ये माइनस किया तो फाइनली नेट बुक वैल्यू ये रहेगी। और वो जो फिगर है वो हम एसओएफपी के फ्रंट पे ले आते हैं, वहां पे हम डिटेल्स नहीं। तो जो फिगर्स की डिटेल्स हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स में होती है। तो ये सारे आपके होते हैं। तो जो ऐसे ऐसे इवेंट्स after reporting period up to the signing of financial statements, ऐसे पीरियड ऐसे इवेंट्स जो कि नॉन एडजस्टिंग इन नेचर हो उनको हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। अब कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग है और कौन से नॉन एडजस्टिंग है, इसके लिए एक प्रिंसिपल याद रखना है। यानी इसके लिए रट्टा भी आपने लगाना है तो यू हैव 4-5 आइटम्स अंडर द एडजस्टिंग, स्टैंडर्ड में बताए हैं कौन कौन से आपकी बुक में लिखे हुए हैं। 4-5 नॉन एडजस्टिंग में है, क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा। यदि क्वेश्चन उनके अलावा सेट नहीं होगा लेकिन उसकी स्टेटमेंट बहुत बार ऐसी हो सकती है कि जिसको समझने के लिए आपको प्रिंसिपल अप्लाई करना है। प्रिंसिपल क्या है, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कब, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर साइनिंग फॉर द पब्लिकेशन, इस पीरियड के दौरान कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी एविडेंस मौजूद है कि वो एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे भी एग्जिस्ट करता था, यानी वो चीज उसकी एग्जिस्टेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट मौजूद थी, वो इवेंट बाद में हुआ, आपने उस इवेंट को एडजस्ट करना। एडजस्टिंग इवेंट कौन सा होगा, एनी इवेंट which has an evidence that it actually existed on the date of financial, तो हम एडजस्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे इवेंट्स जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती है कि ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, उसको सिंपली हम डिस्क्लोज कर देंगे थ्रू नोट्स। एक एक एग्जांपल देता हूं दोनों की समझ। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा मेजर रिसीवेबल है, 31 दिसंबर को आपने उसको रिसीवेबल्स में लिखा हुआ, 15 जनवरी को आप उसको इररिकवरेबल डेट शो कर देते हैं इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है भाई, जो बंदा जिसका 15 जनवरी को पता चला है कि रिकवरेबल हो गया है, क्या वो रिसीवेबल 31 दिसंबर को एग्जिस्ट नहीं करता था? करता था। तो आपको उसी दिन उसको इररिकवरेबल कंसीडर करना चाहिए था। अचानक से कैसे 15 दिनों में कोई रिकवरेबल होता है? इवन किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसके भी कुछ ना कुछ वारिस होते हैं, वरसा होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं, आप उनसे फॉलो अप करके प्रॉपर्टी अमाउंट्स का उससे कंफर्म कर लेते हैं एंड इट टेक्स टाइम। तो इररिकवरेबल डेट ऐसा एक ट्रांजैक्शन है कि जिसकी एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, उसको आपने क्या करना है, अगर 15 जनवरी 20 जनवरी को तय हो गया कि ना बताए रिकवरी हो गया है, नाउ यू विल रीस्टेट द फिगर्स। कौन कौन सी फिगर्स रीस्टेट होंगी, रिसीवेबल्स की फिगर चेंज हो जाएगी, इससे नेट एसेट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी अलाउंसेस फॉर जो इररिकवरेबल डेट्स है उसकी फिगर चेंज हो जाएगी, जिससे आपके एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगे, जिससे आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट चेंज होगा तो कैपिटल चेंज। देखो ये तमाम चीजें आपकी रीस्टेट हो जाएंगी, दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी और फिर उनको फाइनली अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को इन्वेंट्री में लिखा है कि मेरे पास 1.5 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी है, 1.5 मिलियन की इन्वेंट्री, 20 जनवरी को आग लग गई और उसमें से 1 मिलियन की इन्वेंट्री जल गई, पीछे 0.5 मिलियन यानी 5 लाख की इन्वेंट्री खजान पड़ी है। अब वो जो 5 लाख की इन्वेंट्री है खजान, क्या
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर को रीस्टेट किया जाएगा? तो द आंसर इज नो, बिकॉज आग लगने की एविडेंस 31 दिसंबर को नहीं थी, 31 दिसंबर को हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि 20 जनवरी को आग लगनी है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कोई हो जाता है, उसकी एविडेंस 31 दिसंबर को नहीं होती है हमारे पास। नेचुरल डिजास्टर या एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड जिसकी एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पे नहीं होती, उसको हम नोट्स के थ्रू सिंपली डिस्क्लोज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री 1.5 मिलियन है, वो 1.5 मिलियन ही रहेगी। हाँ, अलबत्ता जो नोट्स है वहां पे हम लिख देंगे कि जी ऑन द डेट इतनी इन्वेंट्री थी, ये इवेंट हुआ जिसकी वजह से इतनी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई है, अब रिमेनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये पड़ी है, आपने उसको नोट्स क्लोज करना है। इसके अलावा डिविडेंड्स की एक बात हम करते हैं। अगर डिविडेंड्स आपको पता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है ईयर एंड पे खजान, उसके बाद उनका पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है, फिर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कि शेयर होल्डर्स को कि जनाब इतना प्रॉफिट जो है वो आपको देंगे। चूंकि ये बाद में होता है, इसलिए डिविडेंड जो डिक्लेयर करते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता, उसको भी हम नोट्स के थ्रू डिस्क्लोज करते हैं। इसके अलावा 2 3 4 5 और एग्जांपल्स हैं, वो प्लीज आईएएस 10 का टॉपिक जो है उनसे देखिएगा, उसकी चीजें हटा लगा लीजिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी आपने करने हैं। इस वक्त तक इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। दिस इज आईएएस 10 जी फरमान बोलो। सर क्वेश्चन था एक कि आपने सिर्फ 1 मिलियन थी वो ही सिर्फ जलाई, तो उसमें सारी की सारी जल जाती है, तो गोइंग कंसर्न खत्म हो जाता है कि ये आगे कंपनी नहीं चल सकती, इसका दिवालिया निकल गया, तो फिर क्या नोट्स बनेंगे? इवन देन आपने उसको नोट्स के थ्रू ही डिस्क्लोज करना है, क्योंकि देखो सारी की सारी इन्वेंट्री जल गई, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि उस जलने की एविडेंस ऑन द डेट एग्जिस्टिंग तो नहीं थी ना, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट इज बनानी है, अलबत्ता नोट्स में लिख देना है कि जनाब अब कंपनी का गोइंग कंसर्न जो है वो खतरे में पड़ गया है, तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बनेगी वो फिर ब्रेकअप वैल्यू पर बनेगी। ये स्टेटमेंट ब्रेकअप नहीं वैल्यू सर, अगले साल वो कंपनी चल ही नहीं सकती, तो हम डिस्क्लोजर नोट पे बना के तो फिर अगले साल कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे? चल नहीं सकती से क्या मुराद है, क्या मार्च में बंद होगी या मतलब वो सर देखे ना, जिस दिन सब कुछ जल के राख हो गया, उससे आगे तो खत्म वो। डन, लेट्स से 15 जनवरी को आग लगी, सब खत्म हो गया, आपकी ठीक है, फाइनेंस 18 को जमा करवानी थी, आपकी 18 को सॉरी अप्रूवल थी। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 31 दिसंबर तक, ठीक है। 15 जनवरी को आग लगी, वो जो 15 जनवरी को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी है ना, वो ये वाली है जो 31 दिसंबर तक की है, उसमें नोट्स के थ्रू लिखा होगा कि एक आग लगी। अब अगला काम क्या है, जब बिजनेस बंद होना है 15 जनवरी को होना है, उन 15 दिनों की अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी जो ब्रेकअप वैल्यूएशन। तो नेक्स्ट ईयर अच्छा 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 अच्छा, 15 दिनों की बनेगी फिर। जी। एनी मोर क्वेश्चन, ओके हो गया सर। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सन जो जाग रहे हैं? ये तो क्वेश्चन था जो सो रहा था उसकी तरफ। कोई सवाल नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। फिर बेहतर तो यही है ना कि जो जाग रहे हैं वही सवाल कर लेते हैं।